Good morning, students. This is last lecture for 16th group elements, the oxygen family. Lecture 3 it is, and for sulfur and its compound. We had discussed in first lecture for 16th group elements, that is physical and chemical properties of 16th group elements, and then about oxygen, oxides and ozone as well. And now we are going to discuss about sulfur and its compounds. All element in 16th group element show allotropes or form allotropes, show allotropy. In 15th group elements, except nitrogen, all other also show allotropes. We had discussed about allotropes of phosphorus also, which is not included in this year only in your syllabus, 12th syllabus, but it is included in JEE, it is included in NEET also. They do not give right now their syllabus. Sulfur allotropic forms. There is two types of sulfur found in allotropic form. One is yellow rhombic alpha sulfur it is, and the other one is monoclinic beta sulfur. There is a transition temperature above which one form is stable and below which other form is stable. The transition temperature at which one allotrope is converted into another allotrope, that is 369 Kelvin for sulfur. Below 369 Kelvin, yellow rhombic sulfur stabilized, and above 369 Kelvin, monoclinic sulfur stabilized. As we had discussed, it is yellow in color, that's why it is yellow rhombic. And monoclinic sulfur has a crystalline properties. Still it is a non-metal, but has, though it is a non-metal, but has crystalline properties. Colorless, needle-shaped crystal it is. Melting point 385.8 Kelvin, and melting point of allotropic sulfur is 393 Kelvin. You can see below melting point yellow sulfur may convert into most of the part of yellow sulfur, because they remain at 369 Kelvin, they remain in equilibrium established between these forms. So melting point 369 Kelvin. Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of roll sulfur. Roll sulfur is impure form of sulfur in which it obtained generally. जब हम सल्फर को ऑब्टेन करते हैं कई बाय वेरियस प्रोसेस, तो दैट इज रोल सल्फर, और जब हम उसे एवोपरेट करते हैं तो रोम्बिक सल्फर बनते हैं. एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिसॉल्व इन सम एक्सटेंट ऑफ बेंजीन, अल्कोहल, ईथर एंड कार्बन डाइसल्फाइड. रिएडली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनते हैं भाई? तो मेल्ट करते हैं रोम्बिक सल्फर को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, ऑब्वियसली एक डिश में रखते हैं, कूल करते हैं, जिससे कि क्रस्ट बन जाता है. इट्स लाइक पपड़ी, वी कैन सी कि पपड़ी बन जाती है. पपड़ी बनना जैसे शुरू होता है उसी समय दो होल्स हम क्रस्ट में लगाते हैं, जिससे बाकी का लिक्विड बाहर हो जाए. जो क्रस्ट होता है वही बीटा सल्फर होता है. इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड बट इनसॉल्युबल इन टू अदर्स. Right, as I already mentioned about transition temperature. So remember, this is very important point. Now both rhombic and monoclinic sulfur, one more important thing is there. Both rhombic and monoclinic sulfur have S8 molecule. दोनों के ही S8 molecule होते हैं, दोनों ही S8 फॉर्म में मिलते हैं. एंड दोनों में जो पकड़ रिंग होती है क्राउन शेप्ड पकड़ रिंग होती है. ये क्राउन जैसा अगर हम थोड़ा सा नीचे से देखें तो लुक लाइक एस क्राउन शेप्ड पकड़ रिंग हमें देखने को मिलती है.
वैसे कुछ नए मॉडिफिकेशंस भी हैं, जैसे 6 जिसमें 6 से लेकर 20 तक सल्फर एटम्स पॉसिबल होते हैं. इन साइक्लोS6 a chair form is very common. And one more important thing that I need to mention here is this: at elevated temperature around 1000 Kelvin, S2 is the dominant species, and it is paramagnetic like O2. We know in O2 there is 2 electrons in antibonding pi orbitals, and that's two unpaired electrons. That's why it is paramagnetic. Say S2SO. Right? So remember it also. Here the sulfur dioxide, it is most important oxide of this group family, most popular oxide. Sulfur dioxide is formed together with a little sulfur trioxide when sulfur is burnt in air or oxygen. So it is a general way, burn sulfur and get sulfur dioxide. But industrially sulfur dioxide we get from metallurgical processes. आपने देखा है रोस्टिंग में, कॉपर की मेटलर्जी में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एंड बाय दैट प्रोसेस वी कुड गेट दिस. सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो बनाया जा सकता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फाइड सॉल्ट, मतलब सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, और उनको रिएक्शन करते हैं जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है. ये गैस काफ़ी इजीली लिक्विफेबल गैस होती है, पोलर नेचर की होती है. यू कैन सी 2 बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड, अदरवाइज 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट करते हैं. 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट इज, and angular shaped it is. Lone pair is there, and that's why it is polar and very easily liquefiable gas it is. Colorless gas with pungent smell, burning cracker smell, I can say. I had discussed about it also in that acidic radical test for sulfite, right? So sulfur dioxide is a colorless gas with pungent smell. It is highly soluble in water. Obviously polar it is, so that's why it is highly soluble. It liquefied at room temperature, as I already mentioned. Easily liquefiable gas it is. At 2 atmospheric pressure and 263 Kelvin. It liquefied at 2 atmospheric pressure. The temperature is 263 Kelvin. Almost none other gas has a such a critical temperature. So 263 Kelvin it liquefied. Sulfur dioxide when passed through water form, because it is sulfur is non-metal and oxide is acidic oxide, so it forms sulfurous acid, and which is acidic in nature, gives H plus in solution. It react with, obviously sulfur dioxide is acidic nature, and sodium hydroxide, when react with sodium hydroxide form sodium sulfide, sodium bisulfide. Actually 2 type of salts, sulfurous acid और sulfuric acid, 2 तरह के सॉल्ट बनाते हैं. वन इज सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और बायसल्फाइड. ऐसा ही सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी होगा, वो भी सल्फेट, सल्फ्यूरस अस एसिड्स हमेशा आइट बनाते हैं. सल्फ्यूरस एसिड तो सल्फाइड, एंड एक एसिड हमेशा एट बनाते हैं. इक और अस 2 तरह की पेरेंट एसिड देखने को मिलते हैं. तो वेयर एवर अस इज देयर, इन दैट केस लाइक phosphorus, so will form phosphite, sulfurous will form sulfite. It is a very common reaction. We had discussed about carbon dioxide. We know in the popular test of carbon dioxide, pass carbon dioxide through lime water turns milky, and if we pass excess carbon dioxide through that milky or excess carbon dioxide, in that case that milkiness disappear. Same test sulfur dioxide also give the same reaction as we had discussed above, because calcium hydroxide is also alkali or a base. तो वैसे ही रिएक्शन होता है, किसी भी बेस से ऐसा ही रिएक्शन होगा. फॉर्म कैल्शियम सल्फाइड विच इज मिल्की एंड कैल्शियम बायसल्फाइड विच इज क्लियर सॉल्यूशन. तो सेम रिएक्शन होता है. वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बायकार्बोनेट बनते हैं, यहाँ पर कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम बायसल्फाइड बनता है. बट
कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट की रिलेटिवली सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिजॉल्व होने लगता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। नाउ रिएक्शन विद क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद Cl2 एंड फॉर्म सल्फ्यूरिल क्लोराइड विच इज इंपॉर्टेंट क्लोरिनेटिंग एजेंट। बहुत जगह पर क्लोरिनेशन के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बिकॉज आई हैड मेंशन्ड दैट phosphorus and its compound are not included in this year in your syllabus, तो शायद कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा, बट मैंने उस पार्ट में रिएक्शन विद phosphorus and SO2Cl2 will give phosphorus trichloride. As this compound I used as a chlorinating agent in that slide also. So it is oxidized by O2. This reaction generally attain equilibrium and form SO3. There is a different process in general process, contact process of manufacturing of sulfuric acid. This process also included, और उस प्रोसेस में बेरिडियम ऑक्साइड का यूज होता है, लेकिन एक और प्रोसेस होती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर द सेम प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड हम जानते हैं ये रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इजीली टर्न होने की टेंडेंसी रखता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए बहुत सारे केसेस में नॉट अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस प्लेसेस। It act as reducing agent for Fe3+, MnO4- as well as I-. So for various reaction it sometimes may act as a reducing agent. And here I mention one important reaction with you, that is with MnO4-. Actually it is KMnO4, and same reaction happens with K2Cr2O7 also. In this reaction and I- also you can use these reaction in a that radical test for sulfite for confirmatory test. I- will give I2. So अगर आप SO2 गैस को पोटेशियम आयोडाइड में पास करेंगे, जो भी गैस इवॉल्व हो रही है तो I2 इवॉल्व होगा, और उस जो इवॉल्व गैस है उसे स्टार्च में पास कर दीजिए, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये टेस्ट हो जाता है। या KMnO4 और K2Cr2O7 का भी रिएक्शन में दे सकता था यहाँ पे, और देना भी चाहिए क्योंकि K2Cr2 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज भी इस साल नहीं है, बट यू मस्ट स्टडी दोज प्रॉपर्टीज ऑल्सो बिकॉज इट मे कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो उसमें क्या करते हैं, KMnO4- या K2Cr2O7 KMnO4 या K2Cr2O7 से डिप्ड फिल्टर पेपर को जहाँ से SO2 गैस इवॉल्व हो रही हो तो उसके पास ले जाते हैं। तो KMnO4 का कलर पर्पल होता है और Mn2+ का जो कलर होता है वो पिंक कलर से लेके कलरलेस तक हो सकता है, बट जनरली कलरलेस देखने को मिलता है। इस केस में कलरलेस देखने को मिलता है। तो KMnO4 का जो डिप्ड फिल्टर पेपर है जो कि पर्पल कलर का होगा, और अगर हम एक्सपोज करेंगे SO2 से तो वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसे K2Cr2O7 होता है, उसका ऑरेंज कलर का होता है और सॉल्यूशन का कलर, और जब हम एक्सपोज करते हैं SO2 से तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये कई टेस्ट हैं जो SO2 के लिए एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट किए जा सकते हैं। एक और खास बात, दैट SO2 एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट जनरली ब्लीचिंग इज जस्ट अ माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ wood pulp into soft part. It is also we can say oxidation that is disinfectant, right? But ब्लीचिंग जो करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं, बट वही ब्लीचिंग डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं जो ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग करते हैं। SO2 रिडक्शन से ब्लीचिंग करता है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो जो सब्सटेंस होता है कलर्ड सब्सटेंस उसे रिड्यूस करके कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। You can see in this reaction SO2 oxidize itself, so it reduced color substance. और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इनएक्टिव भी है और थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग भी है। तो अगर आपने रिडक्शन करके किसी सब्सटेंस को कलरलेस बनाया है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से इट मे कंबाइन और अगेन बिकम कलर्ड। दैट्स वाई ब्लीचिंग डन बाय SO2 इज कंसिडर्ड एज टेम्पररी ब्लीचिंग। We'll discuss in halogens bleaching by chlorine and bleaching by ozone. That will be a permanent bleaching, right? Okay, now it is very important for every platform
दीज आर सम इंपॉर्टेंट एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज जो है, नाम तो मैंने मेंशन किए हुए हैं, मैंने फास्फोरस के लिए भी मेंशन किया था, बट कुछ बच्चे होंगे शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरस एसिड इज अ पेरेंट एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज अ पेरेंट एसिड, अस एसिड, पेरेंट अस एसिड। जब हम इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो बन जाता है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। जब हम सल्फ्यूरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लेकर और एक H2O निकाल देते हैं तो बन जाता है पायरो। पायरो हमेशा दो मॉलिक्यूल में से H2O निकालने से बनता है। सो H2S2O5, H2SO3 से दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, ऐड कर दीजिए और उनमें से H2O निकाल दीजिए तो H2SO5 बनेगा। आप इसे पायरो सल्फ्यूरस एसिड कह सकते हैं। तो ये तीन एसिड जो है वो अस एसिड के फॉर्म में आप हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए, आप मेटा भी बनाते हैं और मैंने वहां मेटा के लिए मेंशन किया था, हमेशा याद रखिएगा, जो भी पेरेंट एसिड उसमें से H2O निकाल दीजिए तो मेटा बन जाता है। लेकिन अगर हम इसमें से H2O निकालेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका मेटा नहीं बन सकता, राइट? ओके, नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड, H2SO4, sulfuric acid. Peroxysulfuric acid is also a popular sulfuric acid. It is also known as Carros acid. और इसमें क्या करते हैं, अगर हमें केवल फॉर्मूला जानना है, जब भी पेरोक्सी है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर देते हैं तो पेरोक्सी बन जाता है। उसमें एक पेरोक्सी रिंग होगी और इसीलिए इसमें पेरोक्सी रिंग होने के कारण, यानी दो ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े होंगे, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 ही रहता है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो इसका +10 आएगा, बट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन रिंग, यू कैन सी पेरोक्सी फॉर्मूला पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर, इसमें दो ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जो पेरोक्साइड रिंग बनाते हैं और पेरोक्साइड रिंग जब बनती है तो दोनों का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। 1 ऑक्सीजन निकाल दीजिए जैसे सल्फ्यूरस में निकाला था, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इश्यू होता है। जब आप एक का हाइपो बनाते हैं तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं और वहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेने के बाद जो पायरो बनता है, आप देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल लेंगे H2SO4 का, तो आपने जो पायरो बनाया है, आगे देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, उसमें से भी एक ऑक्सीजन कम करते हैं तब हाइपो बनता है। पायरो से कम करेंगे तो एक एसिड का हाइपो तब बनेगा। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए दो मॉलिक्यूल में से H2O निकाला तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना और एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए। केवल हाइपो के केस में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सल्फ्यूरस में और सल्फ्यूरिक में। सल्फ्यूरस में वहीं से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, बट सल्फ्यूरिक में पायरो बनाकर फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इट इज H2S2O8। सीधी सी बात है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो दो सल्फर होंगे, यानी पायरो में आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। मार्शल्स एसिड कैसे कहते हैं इसे। तो बड़े आसानी से स्कीम बना सकता था मैं, और बना सकता था बिल्कुल, लेकिन आपके लिए भी तो कुछ काम छोड़ा जाए, तो एक स्कीम आपको बनानी है। आई आस्क्ड फॉर दिस स्कीम ड्यूरिंग क्लास, जिसके थ्रू हम आसानी से ये याद रख सकते हैं। ओके, नाउ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम होके एक सल्फर आ जाता है इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। दीज आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स यू कैन सी हियर। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, in this thiosulfuric acid one sulfur is have zero oxidation state and other have +4 oxidation state. So overall the oxidation state of sulfur, because there is 2 sulfur and change in oxidation state is 4, so 4/2 आप जो डायरेक्ट निकालते हैं that will be +2. Thiosulfuric acid. Dithionous acid H2S2O4, dithionous acid it is. आप देखें कहीं आपको दिख रहा है H2S2O4 नहीं, तो ये डाइथायोनस एसिड है, राइट। एंड लास्ट वन डाइथायोनस एसिड, इसमें दो सल्फर जुड़े होते हैं आपस में, अगर यहाँ कहीं मेंशन होगा तो इसमें ये दिस इज डाइथायोनिक एसिड। अस एसिड में एक ऑक्सीजन कम होता है, ये वाला एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, राइट। पॉलीथायोनिक एसिड्स आर ऑल्सो द थायोनिक एसिड। I had not mentioned thionic acid because it is H2S2O6. It look like as
This is hyposulfuric acid. It is also called thionic acid. Or in polythionic acid there is more sulfur between these two sulfur. Right. अब हम स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे जब हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना हो? एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ सल्फर के कंपाउंड्स के सल्फर के ऑक्साइड्स के एसिड्स बनाना बहुत आसान होता है. कैसे? कुछ ऐसे, क्योंकि इसमें जितने हाइड्रोजन होते हैं वो OH होते हैं, OH के फॉर्म में होते हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट बी रिमेंबर दैट ऑल सल्फर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जितने बॉन्ड बनते हैं उसके अलावा आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. जितने बॉन्ड दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा जो है वो लोन पेयर होगा. एंड द सेकंड इज, तो फर्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. नंबर ऑफ H एंड नंबर ऑफ OH विल बी इक्वल. जितने OH होंगे उतने ही H होंगे. यू कैन सी एवरीवेयर OH. देयर इज नो सिंपल और सेपरेट H एज इन फॉस्फोरस एसिड्स. एंड द थर्ड वन इज first combine or existing H with O, so you remember remaining oxygen will combine with sulfur by double bond. जो भी बचे हुए ऑक्सीजन होंगे वो सल्फर से कंबाइन होंगे डबल बॉन्ड के थ्रू. राइट. सो इस तरीके से आप हर एसिड के लिए बना सकते हैं. नाउ अब बात आ जाती है जैसे जिसमें दो सल्फर है, जहां पर एक से ज्यादा सल्फर है, उन केसेस में अगर ऑक्सीजन का नंबर इवन है तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड नहीं होगा, और अगर होता है तो वो परऑक्सी हो सकता है. जैसे H2S2O8 देखिए, परऑक्सी रिंग ही हो सकती है इन दोनों के बीच में अगर नंबर इवन है तो. और आप आसानी से देख सकते हैं 3 बॉन्ड ही बनाएगा सल्फर, रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है वो यहां आ जाएंगे, एक बॉन्ड इधर बनाएगा इस तरीके से. सो सल्फर, दो सल्फर के बीच में अगर नंबर इवन है तो या तो सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, या फिर परऑक्सी होगा जो इन दोनों के बीच में आ सकता है. और अगर ऑड है जैसे कि आप देख सकते हैं H2SO5 H2S2O7, राइट. इन ऑल अदर केसेस सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड होगा, जैसे H2S2O7 H2S2O5. अगर दो हैं तो, और उसका स्ट्रक्चर नहीं दिया आप बना सकते हैं. जिसका स्ट्रक्चर नहीं गिवन है वो आप खुद बना सकते हैं. अगर कोई इश्यू है तो आप मुझे बताइएगा, तो आपको वो बना के मैं दिखा दूंगा. सो ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, अगर हम इनका यूज करेंगे तो बड़े आसानी से. स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उन पॉइंट्स को ध्यान रखते स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम याद रख सकते हैं, और डेफिनेटली स्ट्रक्चर आपको आएगा. 1 2 4 कोई भी मार्क्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, और कॉम्पिटिशन्स में भी आ सकते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, as I already mentioned, it is most important acids, not for sulfur only. All acid in chemicals, it is king of acids. That's why it is called king of acids, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है. जैसे अगर स्टेबल एसिड्स में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेबल एसिड्स हैं उनमें स्टेबल है. जैसे HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, लेकिन वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता. राइट. सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स हम इसे कहते हैं. कैसे बना सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड हमने जैसे बनाए थे उन्हीं प्रोसेस से. इसमें 3 स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. पहले स्टेप्स में आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, इधर आप बनाते हैं, या जैसा इस डायग्राम में देखा आपने, इसमें सल्फर बर्नर है, वहाँ सल्फर बर्न करके बना सकते हैं. लेकिन बढ़िया होता है कि आप डायरेक्ट ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर मेटलर्जिकल प्रोसेस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वहां से हम उसे कलेक्ट करें, और वही सबसे बढ़िया तरीका होता है. और उसके बाद SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं. SO2 से SO3 कन्वर्जन, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज, और स्टेबलिश इक्विलिब्रियम, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस. ली सेटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करता है, इसलिए थोड़ा हाई प्रेशर रख सकते हैं. टेम्परेचर थोड़ा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड जा सकता है, लेकिन इनिशियली टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो सके. एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो आप थोड़ा कम टेम्परेचर करें. हाँ, बहुत कम नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर जरूरी होता है.
एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2S, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट H2SO4 बनाते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, क्योंकि SO2 की सॉल्युबिलिटी और SO3 की सॉल्युबिलिटी वाटर में काफ़ी अच्छी होती है, तो इस कारण से वो डाइल्यूट बनेगा। बट जब हम ऑलियम बनाते हैं तो ऑलियम को हम, जिसमें SO3 डिसॉल्व होता है, हम अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से H2SO4 अपने डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का बना सकते हैं। उसके लिए उसमें वाटर मिलाते हैं और उसके बेसिस पर जो SO3 होती है वो एग्जिस्टिंग SO3 जिसमें एब्जॉर्ब हुई है वो H2O से कंबाइन होती है और उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, राइट। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, हर ओलियम जो ऐसा बनता है उसके ऊपर लेवल किया जाता है और उसमें एक परसेंटेज होता है। आपको किसी भी ओलियम का अगर परसेंटेज पता करना है तो उसके लिए कई फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट फार्मूला। मैं उस फार्मूले को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जिनको कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना हो वो उस फार्मूले को थोड़ा याद रख सकते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज इक्वल टू 98W/80, 98W/80, ओके। दिस इज फर्स्ट टर्म 98W/80, फिर इस टर्म को प्लस करते हैं 100 माइनस W से, राइट। तो 98W/80 प्लस 100 माइनस W। W यहाँ वेट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो अगर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना है वो वेट पता चलता है तो आप बता सकते हैं कि लेवलिंग कितनी है, और अगर लेवलिंग पता चलती है तो आपको बता सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जितना होता है उसी हिसाब से H2SO4 बनता है, यानी W जितना होगा उसी के हिसाब से H2SO4 बनेगा। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम इट इज नोन एज। इस प्लांट में देख सकते हैं कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। वाटर स्प्रे, जैसे आपने सल्फर डाइऑक्साइड और O2 आगे जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये गैस के फॉर्म में रहते हैं और ऊपर से वाटर स्प्रे होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, कम होगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, ज़्यादा पे नहीं होता, गैस की सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, तो ये वॉश कर देते हैं, जिससे कि कोई अगर डस्ट वगैरह, कोई अदर स्मोक वगैरह है तो वॉश ऑफ हो जाए। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्प्रे करते हैं, टेम्परेचर अगेन यहाँ ज़्यादा होता है तो जो भी मॉइस्चर होता है वो यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ होता है, तो बाहर कर दिया जाता है। ड्राइंग टावर है, उससे पहले वॉशिंग टावर या कूलिंग टावर होता है। उसके बाद इसे प्री हीटर से पास करते हैं और फिर वहाँ V2O5 एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जिसके थ्रू इसे पास करते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे से SO3 ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से H2SO4 गिराया जाता है, जिसके थ्रू पूरा SO3 इसमें एब्जॉर्ब होता है और ओलियम बनाकर इसे अलग कर लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड होता है विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84। अगर आपको याद हो नाइट्रिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 अराउंड होती है, इसकी 1.84। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही होता है कि ये सिंक हो जाएगा वाटर के अंदर। Acid freezes at 283 Kelvin, freezing point is 283 and boiling point is 611 Kelvin. Dissolve in water with evolution of large quantity of heat. डिजॉल्व होता है वाटर में। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन के समय हमेशा हमें एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए। आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, एसिड को जब वाटर में मिलाएंगे तो सिंक कर जाएगा और प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और उतना हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जब आप वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो सिंक नहीं करेगा, सरफेस पे रहेगा और सरफेस के साथ बहुत तेज रिएक्शन करेगा, प्रॉपर पूरे में मिक्स नहीं होगा और इसके कारण से बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और स्प्लैशेस कॉज हो सकते हैं, जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी लैब को भी नुकसान हो सकता है, आग भी लग सकती है, बहुत सारी इश्यूज हैं। इसलिए ड्यूरिंग डाइल्यूशन मस्ट ऐड एसिड इनटू वाटर। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण से H2SO4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो लो वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद वाटर होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, मॉडरेट सही लेकिन होता है। इन एक्वस सॉल्यूशन आयोनाइज इन 2 स्टेप। एक्वस सॉल्यूशन में इट एक्ट एज एसिड और 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है और इसीलिए 2 तरीके के सॉल्ट बनाता है।
जैसा मैंने पहले भी कहा था, हाइड्रोजन सल्फेट एंड सल्फेट Ka1, आप देख सकते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फर्स्ट डिसोसिएशन इज वेरी एसिडिक बट सेकेंड डिसोसिएशन इज लिटिल विथ और आई कैन से लेस एसिडिक। आप देख सकते हैं 10 to the power -2, 10 to the power -2 भी कुछ बुरा नहीं है। जो वीक एसिड होते हैं उनका 10 to the power -4 से शुरू होता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी रिलेटिवली वीक होता है। यानी HSO4 का H3O प्लस और SO4 2- में जो डिसोसिएशन होता है थोड़ा लेस होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्ट्स आर सल्फेट, राइट। लो वॉलेटिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर also helpful whenever it react with any metal salt, I can say, except some acid which are more acidic than H2SO4। यहाँ पर आप क्लोराइड्स ले सकते हैं, हेलाइड्स ले सकते हैं, नाइट्रेट ले सकते हैं, फॉस्फेट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं X की जगह पर। H2SO4 से रिएक्ट करेंगे और सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा और वो एसिड बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस H2SO4 gives NaX प्लस HX, like NaCl plus H2SO4 gives HCl plus Na2SO4. Fluorine and chlorine can we take only? We'll discuss about it also. Whenever it is NaBr or NaI, H2SO4 will form sulfate salt but cannot form HX. It gives I2 and Br2 in the gaseous form. We'll discuss in halogens also this. Strong dehydrating agent. It can pull water from everywhere, almost every organic compound. You can see through sucrose. आप अगर शुगर में H2SO4 डालेंगे तो वो काला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें से पूरा वाटर ये बाहर निकाल देता है और शुगर चार्ड हो जाता है। ऐसा तब भी होता है, यू कैन नोटिस इट ऑल्सो, जब आप गर्म करते हैं शुगर को, डार्क कलर्ड होता जाता है। आपने इथीन के प्रिपरेशन में लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था, C2H5OH को H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं। इट मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी आई हैड रिटन हियर aqueous, it is concentrated, so we cannot write it right here aqueous, right? So it pull water from C2H5OH and convert into C2H4. Dehydration of alcohol it is. Dilute sulfuric acid react with almost all metals except copper, silver, mercury, gold and platinum and form metal salt and liberate hydrogen. In this case hydrogen ion reduce. No reaction with non metals. Generally H2S dilute H2SO4 का non metal के साथ कम ही रिएक्शन होते हैं, लगभग नहीं के बराबर। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है और इसीलिए इन केसेस में H प्लस का रिडक्शन ना होकर SO4 2- का रिडक्शन होता है। जब जैसे नाइट्रिक एसिड में NO3- का होता है, यहाँ पर SO4 2- का होता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉस्फोरिक एसिड में या HCl में ऐसा नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है और चाहे वो मेटल के साथ हो चाहे वो नॉन मेटल के साथ हो, SO2 हमेशा लिबरेट होगा। मेटल के साथ लगभग सारे मेटल के साथ एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम सब मेटल के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और जो है वो SO2 प्रोड्यूस करता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो कुछ नॉन मेटल जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनके साथ ये रिएक्शन करता है और इनके ऑक्साइड्स बनाता है और SO2 प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना ही बहुत वीक होता है, जैसा कि इसमें मेंशन इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एंड नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉस्फोरिक एसिड लीस्ट वन, राइट। So it is intermediate between these two. And here the uses of sulfur. किसी देश की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ इस बात पे जज होती है कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है।
आप देखें कॉपर सल्फेट विच इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, आयरन सल्फेट विच इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल, जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल। तो इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी होता है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। इट्स माई सजेशन कि 1 2 3 यूजेस इसके याद रखिए, इट विल बी यूजफुल, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट 16th ग्रुप एलिमेंट्स, राइट। स्टडी इट, लर्न इट, discuss use of it in next class, in your scheduled class, right? Thank you for today.